ਆਪ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਪਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 700 800 ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ। 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। 18 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ 24 ਯੂਨਿਟ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ 1000 mg ਦੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ BP ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ। ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨਸਾਂ ਫਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਹੈ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, BP ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ PGI ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ PGI 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 10 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 400, 500, 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। BP, ਹਾਈ BP ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
मेरिया किडनियां बिल्कुल डैमेज हो गई सी, किडनियां ने काम बंद करता सीगा। हुण मेरिया किडनियां दोबारा तो शुरू हो गई काम करने वास्ते, और 90% मैं तुर नहीं सकता सीगा, बिल्कुल भी चल नहीं सकता सी, बैड ते सीगा मैं 2 साल तो बैड ते सी। और मैनू इस मसीह ने ठीक किया, और मैं चंगा किया उन्हें मैनू, और मैं हुण ठीक हाँ, बिल्कुल इन्ना क ठीक हाँ कि मैं यीशु मेरे अंदर समा गया। उन्हें अपनी जिन्नियां मेरी बीमारियां सी सारियां अपने सिर ते लै लियां, और मैं चंगा हो गया। और मैं हुण 1 2 किलोमीटर तुर सकदा पैदल, कोई थकावट नहीं होंदी। मेरे च खून भी खत्म हो गया सीगा, वो भी परमेश्वर ने देता मैनू। परमेश्वर एडी वड्डी चीज़ है कि तुसीं उहदा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बारी जाके देखो सारे, और मैं कहना भी जिन्ने भैन भरा मेरे बीमार ने और सारे चंगे हो जाण। परमेश्वर की इन्नी महिमा है कि मेरी परिवार नूं, मेरी वाइफ नूं गोडियां दा दर्द रहिंदा सी, वो भी ठीक होई है उत्थे मेरे नाल जा के। धन्यवाद प्रभु जो हमारे को अच्छाई दी है, चंगा किया आपने। हमारे वो दिन आए थे, हम बहुत दुखी थे, कहाँ कहाँ से गए, पीजीआई गए, बत्ती गए, अमर हॉस्पिटल गए, हमारे को सबसे जवाब मिल गया था। इतना पैसा लगाया, कोई हमारी किसी ने सुनाई नहीं हुई। हम घर आ गए, वहाँ इतने बुरे तरीके से हमारे को बोला गया, कहते आप नहीं चंगे हो सकते, आप घर जाओ। हमें यहाँ घर आई, मेरा बीपी बढ़ गया, हम रो के दोनों माँ बेटे बैठ गए। ये लड़ता था हमारे साथ, हमारे को मारता भी था। जैसे जैसे हमारे परिवार में से कोई सुनता था, देखता था, कहता पता नहीं क्या होएगा, कब इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। हमारे 2 बेटे, मेरे एक बेटी है, एक मैं, हमारे तीनों चारों बंधु को ये देख के राजी नहीं होता था, हमारे को मारता था। हम रोते थे, ये अच्छे तरीके से खा लेता था, बैठ जाता था, अपने परिवार को यो करता था, अच्छे हैं मेरे बहन भाई, अच्छे हैं, हमारा तमाशे देखते रहते थे। कोई कहता था सतपाल तेरा बेटा वहाँ मोटरसाइकिल पे लड़कियां बिठा के जा रहा था, आपने देखा है? इसने देखा तो क्या, डंडा लेके शुरू हो गया। रात को 2 बजे उठ के बच्चों को मारने लग जाता था। एक दिन मेरे को बियर की बोतल तोड़ के रात को मेरे को मारने लगा, रात के 11 बजे। हर बात का गलत मतलब निकालता था, हर बात का। हम रोते रहते थे, माँ बेटे करते रहते थे, खाते रहते थे। जब हमारे को वहाँ पता चला भाई बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से धन्यवाद कर दो यीशु मसीह का, हमारा सारा कुछ चंगा हो गया है, अब लड़ता नहीं है, बोलता नहीं है। सबको रिपोर्टें कराई दोबारा हमने, वो किडनियाँ दोबारा उनकी खुलने की हो गई है। डॉक्टर कहता है ये आपने कैसे किया है भाई, ये दोबारा वापसी कैसे आ रही है, ये तो होता नहीं है। फिर हमने बताया भाई ऐसे ऐसे हम सनोली चर्च में जाते हैं। अच्छा वहाँ ये भी होता है? हाँ जी डॉक्टर साहब ये भी होता है। बहुत अच्छा उन्होंने वो किया। हमारे को 7 हफ्ते बोले थे, हमारे को 10-11 हफ्ते हो गए जाते जाते। पिछले संडे इनकी गवाही हुई है, बहुत अच्छा हुआ। अब हमारे को ये लड़ता नहीं है, अपने बच्चों से प्यार भी करता है, बैठ के समझाता भी है, बच्चे भी इसकी सुनते हैं। ना तो हमारे घर में कोई वो नहीं था, रात दिन रोने के अलावा और कुछ नहीं दिखता था हमारे को। हमारी इतना क्लेश, बहुत बुरा हाल रहता था हमारे साथ। 4 संडे मेरे को उल्टियाँ आई, वहाँ इतनी उल्टियाँ आती थी, बहुत बुरा हाल हो जाता, पेट भी दुखने लग जाता था। उसके बाद फिर मेरे को धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया। मेरे गोडे दुखते थे, पूरी बॉडी दर्द करती थी। इनके पैर जल गए थे, दोनों अंगूठे, इतने बड़े बड़े छाले हो गए इनको। मैंने बोला ये क्या हो गया? कहता पता नहीं मेरे को क्या हो गया। फिर मैंने वहाँ ऑयल लगाना शुरू किया, तो ये मेरे को बोलते मेरे को डॉक्टर के पास ले चल, छिलवा के पट्टी करवा दे। मैंने बोला नहीं, अब अपना डॉक्टर यीशु मसीह है अपने, वहाँ जाएंगे हम, मैं नहीं लेके जाती। ये बोलते रहते थे, मैं सुनती नहीं थी इनकी, वही लगाती थी सुबह शाम। जो हम प्रार्थना जितनी आती है उतने करते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, बेटा भी सुनाता है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। बाकी तुसी सनौली चर्च आके देखो, एक बारी अखा नाल देखोगे, बीमारी लैके आओ, ठीक होके जाओगे। सनौली चर्च जरूर पहुँचो। मेरी सारे भरावां के बेनती है कि एक शुगर ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिहड़ी कि जिंदगी कदे ठीक नहीं हो सकती। मेरी शुगर ठीक हुई है 20 साल पुरानी, मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हुई है 20 साल पुरानी। और जदों मैं परमेश्वर जाना शुरू किया, मैं मिठी चाह भी लै रहा, मिठा भी खा रहा, सब कुछ कर रहा। जिहड़े बंदे नूं डॉक्टर ने पीजीआई चों जवाब मिल गया सी, तुहाडे सामने चंगा भला बैठा है,
मैं मौत के मूँह चों निकल के आया बाहर। मौत ने मैनू एक बारी नहीं 3 वारी घेरिया, जिहड़ा कि मैं एक पौड़ी नहीं चढ़ सकता सी। मैं हॉस्पिटल दियां 5-5 3-3 मंजिला पौड़ियां चढ़ जाना, बगैर लिफ्ट तो जाना। तुरना मेरे लिए हराम सी कि मैं 2 कदम नहीं तुर सकता सीगा, मरन वाला हो जाता सी। हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मेरे महल्ले नूं पूरे नूं पता है, और मैनू इत्थे मेरे मित्र ने राणा साहब रविंदर जी, ये मैनू फड़ के लैके जांदे हुंदे सीगे। एक इधरों फड़दा सी बंदा, एक इधरों फड़दा सीगा। मेरी सारी कॉलोनी गवाही देने नूं इस चीज़ लई तैयार है। मैं जगदीश सिंह राणा, जो सतपाल सिंह के पड़ोसी हैं। मेरे साथ में मिस्टर रविंदर सिंह हैं, ये भी सतपाल जी के पड़ोसी हैं। सतपाल जी हमारे साथ 2 साल से संपर्क में हैं। जब ये आए थे इनकी हालत बहुत ख़राब थी। ये 20 साल से शुगर के मरीज़ थे, और शुगर के मरीज़ होने के नाते इनकी शुगर 700-800 के करीब रहती थी। इतनी हाई शुगर रहने के बावजूद इन्होंने बीमारियों ने इनको घेर लिया। सबसे पहले इनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिससे इनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और उसके साथ साथ हाई स्टेटेड दवाइयाँ खाने की वजह से इनका पेट की हालत भी ख़राब हो गई। जो ये खाते पीते थे सब निकल जाता था उल्टियों के द्वारा। इसके साथ साथ जब दवाइयों का सेवन ज़्यादा हुआ तो इनकी आँखें भी ख़राब हो गई, जिससे इनका दिखना भी बंद हो गया। लास्ट में इनको पीजीआई ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इनको 10 दिन का टाइम दिया कि भाई तुम्हारी किडनियाँ ख़राब हो गई, तुम्हारा बचना बड़ा मुश्किल है, और तुम इसका जो भी है इनके बच्चों को बोल दिया कि इसकी सेवा करो। ये बहुत दुखी हुए। दुखी होने के नाते इनको सनौली चर्च के बारे में पता चला कि वहाँ पे जाओ, वहाँ आपको ईसा मसीह की दुआ से आप ठीक हो सकते हैं। ये लोगों के कहने से जब इनको सनौली चर्च में जाने का मौका मिला, वहाँ से पंचन मित्तल की अध्यक्षता में यीशु मसीह जी की दुआ पढ़ी गई। जैसे जैसे ये वहाँ जाते गए, दुआ होती गई, ये दिन प्रतिदिन बहुत आराम महसूस करने लगे। 3 महीने जाने के बाद आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। हम और मेरे पड़ोसी रविंदर, हम इस बात के गवाह हैं कि ईसा मसीह की शक्ति के द्वारा जो करिश्मा इनके ऊपर हुआ है, हम सब कॉलोनी वासी देख के हैरान हो गए। हम सब से जो आसपास में और भी कोई परिवार इस तरह से परेशान है, वो सब अब सनौली चर्च जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं कि हमारा भी दुख सब ईसा मसीह की दया से कट जाएंगे। धन्यवाद। और सब ने मेरी बड़ी अच्छी सेवा की है। मैनू उम्मीद नहीं सी 1% भी कि मैं बच जाऊँगा। मैं तो अपने कपड़े तक भी अपने बच्चों को वंडते सीगे कि बेटा मेरी कोई आस नहीं है, तुसी ये लै जाओ, तुसी पाओ। लेकिन परमेश्वर ने दोबारा तो जिंदगी मैनू बख्शती, इन्नी की जिंदगी बख्शती कि मैनू उम्मीद ये हो गई कि मैं 30 साल या 40 साल होर मैं जीऊँगा। जिथे मेरी हालत ये सी कि मैं रोटी नहीं खा सकता सीगा, चाह नाल ते दूध नाल मेरा गुजारा हुंदा सी, माड़ा मोटा जिदा पी सकता सी। हुण मैं रोटी भी खा लैना, सारा कुछ मतलब कि अपना हत्थी कोई काम करना हुंदा वो भी कर लैना। बाजार जाना हुंदा, गड्डी चलानी हुंदी, मैं गड्डी भी चला लैना। मैं ऑलरेडी गड्डी लैके राजस्थान तक गया, आया भी उत्थों वापस, और बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं हुई मैनू। मेरी अखां दी रोशनी भी वापस आ गई मालक दी कृपा नाल। मेरे गोडे भी ठीक हो गए, सारा कुछ मेरा एवरीथिंग। इस टाइम मैं अपने आप नूं 35 साल का महसूस करता। मेरी उम्र 55 साल है, इस टाइम मैं अपने आप नूं 35 साल का महसूस करता। अज तो बाद मेरे घर दे विच कोई बीमारी नहीं है। मेरा सारा परिवार, मेरे बच्चे, असी सारे खुश हैं। मेरा बेटा मैनू सुनांदा, बाइबल पढ़ के सुनांदा, क्योंकि मैं अनपढ़ बंदा, वो बेटा मेरे नाल बैठ के मैनू सुनांदा सारा कुछ। और असीं दोनों मियाँ बीवी बड़े ध्यान नाल सुनते हैं। और यूट्यूब ते कंचल मित्तल का जिहड़ा प्रोग्राम चलता है, जिहड़े प्रवचन चलते हैं, असीं वो भी सुनते हैं। और सारा परिवार हर संडे चर्च जाता है। चर्च जाने तो बाद मेरे घर दे विच कदे कोई कमी नहीं आई। पहला मेरा घर मैनू खाली खाली लगता सीगा, लेकिन हुण ऐन लगता कि परमेश्वर ने मेरा घर भरता दोबारा तो। मैं 9 साल तो विहला बैठा सी, मैनू बाहरों भी ऑफर आने लग गई भी तू एक काम शुरू कर, असीं तेरे नाल आ। कनेडा तक तो, अमेरिका तक तो मैनू टैलीफोन आने लग गए, जिहड़ा कि मेरा काम पिछले 9 साल तो बंद पिया सी, वो दोबारा तो शुरू हो रहा।
ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਆਓ ਸਨੌਲੀ ਚਰਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਨੌਲੀ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, 1000 ਗੁਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਚਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਆਮੀਨ।